آپ کو اور بات بتا دوں, یہ جس دن یہ جو ماہ رمضان گزرا ہے, میرے پاس وہ ویڈیو پڑی ہے, میں وہ عدالت میں دوں گا. ایسے نہیں, مجھے وہ زیب نہیں دیتی اپنی بیوی کے سامنے بھی بیٹھ کے کہ میں وہ ویڈیو دکھا دوں. اور اس میں کیا تھا کہ ان کی بیٹی کی 16ویں سالگرہ بتائی گئی, اور اس میں جو ہو رہا تھا, ادھر سے افطاری کا ٹائم تھا, ادھر سے حضرت علی کی یوم شہادت کا دن تھا, ماہ رمضان کا مہینہ, وہ کیا ہو رہا تھا. اور سب سے بڑی اور بات ہے سر, اس میں تو پتہ ہی کوئی نہیں, میں کر کی رہی ہوں سر. جو اسٹوڈیو کے ساؤنڈ پروف گدیاں ہوتی ہیں سائڈوں پہ لگی, وہ پاؤں میں ڈال کے ان کے اوپر ناچ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم, مسعود چودھری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی. ناظرین محترم, میرے ساتھ ملک محمد نواز سوکی موجود ہیں. لوک ورثہ کے اوپر مسلسل لوک ورثہ کرپشن سکینڈل اور اس سے متعلق جو دیگر تمام تفصیلات ہیں اس کے اوپر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. بہت سی ایسی سٹرائکس ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر سوکی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ کمپلینز کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ طاقتور کو لتاڑتے ہیں, جب طاقتور کی دم پہ پیر آتا ہے, جب طاقتور کو یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ صحافی اپنا حق ادا کر رہا ہے, اپنی سٹوری کا, اپنے کام کا حق ادا کر رہا ہے, قلم کا حق ادا کر رہا ہے, تو پھر جو طاقتور ہوتے ہیں وہ پھر ہر راستہ, ہر حربہ استعمال کرتے ہیں, اور ہر حربہ استعمال کرتے ہوئے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زیر عتاب لایا جا سکے. ملک محمد نواز سوکی ابھی بھی بہت زبردست انداز میں ڈٹا ہوا ہے اور اپنے بہترین انداز میں جو سٹوری ہے اس کو کور کر رہا ہے. لوک ورثہ میں کرپشن کی ہوش ربا کہانیاں جو ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. لیکن آج ملک محمد نواز سوکی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی, آپ بھی مسکرا رہے ہیں, میں بھی مسکرا رہا ہوں. ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, وہ بھی یقیناً مسکرا رہے ہوں گے کہ آج بھی ایک اور مرتبہ کچھ ایسا ضرور آ رہا ہے جو بڑا اہم اور ضروری ہے. آپ کو سٹرائکس بھیجی گئی یوٹیوب چینل پر, گو کہ یہ انتہائی لا یعنی سی بات ہے, لیکن سوال یہ نہیں ہے. سٹرائکس کا تو جواب ہم دے دیں گے, ظاہر ہے سارا دن دیتے ہیں, سب دیتے ہیں, سارے عدالتوں میں جا رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ملک محمد نواز سوکی کی جو سٹوریز ہیں وہ تو نظر آ گئی, اس کے اوپر سٹرائکس بھی آ گئی, لیکن جو لوک ورثہ کا ڈیٹا ہے وہ نظر نہیں آئی کسی. 90 لاکھ یہ منو دو میں دسنا پھر میں نہیں, مطلب میں سوال کر رہا ہوں کہ کہیں پر 1 کروڑ, کہیں پر 90 لاکھ, کہیں پہ 50 لاکھ, کہیں پہ 60 لاکھ لوک ورثہ کا ڈیٹا, یعنی جو لوک ورثہ کی ملکیت ہے وہ حرام دہ ہے نا, وہ سارا کچھ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا. یہ تمام ناظرین میں بس ساری تفصیلات موجود ہیں, لیکن میں نواز سوکی صاحب سے پوچھوں گا کیا کہیں گے. بہت شکریہ بھائی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مینو ایک کو گل پھر یاد آ گئی. اج کل جڑا واٹس ایپ دا انہوں نے بہت محسوس کر دیتا پالیسی جو بھی آئی, ہر بندے نو پتا. میں ایک چھوٹا جا میسج دینا, کئی دوستوں نے مینو کال, سوکی صاحب اتنے دن ہو گئے تو سٹوری کوئی نہیں لائی. سٹوری تو میں روز لانا وا, لیکن واٹس ایپ دی لوگ انتظار کر دیں. میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ چینل نو سبسکرائب کر لو, آج میں کوشش کر سا جتنے نو بھی میں واٹس ایپ کر سکا, لیکن واٹس ایپ کی انتظار نہیں کرنی. چینل نو سبسکرائب کر لو, وہی گھنٹی دبا دیو جناب, تو اس تو بعد جس ویلے میں سٹوری آن کر سا تسی یوٹیوب تے جاسو تے تانوں لنک پہنچے گا اسی. بالکل ٹھیک. ہن آ جانے اس تے چودھری صاحب, میں کیڑے لفظ تو شروع کراں. 2 سال ہو گئے, سوری میرے گلے میں آج خراش ہے, 2 سال ہو گئے میں پٹ رہا ہوں کہ ڈیٹا کیوں کوئی چلا رہا ہے اور ایک چینل نہیں چلا رہا. چوری ہوا ہے, چوری الگ ہے, چوری نہیں ہوا, یہ خود چلوا رہا ہے. اب میں نے کل وہ میں درخواست دے پروگرام اس پہ کرنا تھا, لیکن بات کچھ اور, ظاہر ہے وہ بات کہیں اور شروع ہو گئی. تو وہ شہر کدی کدی بڑا, میں شہر کہندے نا کئی لوگ کہ تو پھر وہ پی کے لو لوکاں دا بنے منہ زور وے, اساں گھٹ پیتی ہے تے مچ گیا شور وے. ہائے ہائے, واہ واہ واہ. انہاں انور صاحبہ, ہاں
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਦਾ ਡੇਟਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ CD ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ए आर्टिस्ट हो के मैं गया नहीं है लोक विरसा, यार मैं क्यों जाऊं, कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। हाँ। लेकिन जब बेटे के साथ शुरू हुआ 2 साल में अगर महीना डेढ़ कम रह गया होता, क्योंकि ये गर्मी नहीं पिछली गर्मियां ने मैंने दिन याद है। चौधरी साहब हुण जरा मैनू दसो जी। जी जी। मैं जरा अपने नाजरीन ते इंसाफ छोड़दा वां। हाँ। कि 2 साल में मैं बार बार एप्लीकेशन देना, बार बार प्रोग्राम कर रहा हूं। ये है जी इनके साबका हस्बैंड अक्सी मुफ्ती का चैनल है जी, ये देख सकते हैं, डेटा लोक विरसा का है। और इस पे ये 143 स्टोरियां हैं, 143, 812 सब्सक्राइबर हैं, मैं बताता हूं। और एक स्टोरी पे 2,50,000 से ज्यादा व्यू हैं, ये देख सकते हैं ये स्टोरी। क्या ये किसी को नजर नहीं आया? मतलब 2.5 लाख व्यूज हैं एक पे स्टोरियां 143 हैं। हाँ। अब मैं आ गया, और उसके अलावा और बहुत सारे व्यूज हैं, जाहिर है वो आपने- तो हजारों में, हाँ। लाखों में। हाँ। अब आते हैं जनाब, ये मुस्तफा कुरैशी साहब की मिसेज हैं। उधर दिखाएं, उधर। मैं दिखा रहा हूँ, आपको देखा हुआ है, आपको मैंने तो दिखा देखा देता हुआ है जी। सर ये 14 साल पहले उधर भी दिखा देना। मैं दिखा रहा हूं, मैं पढ़ के, ये 14 साल पहले स्टोरी लगी है। ये किस चैनल पे है? ये इनका काम था ढूंढना। 57,000 यानी 57,000। ये नाजरीन आप देख सकते हैं जी, ये किसका था? आगे चलते हैं। लोक विरसा की है वही ना, मैं ये काम किसका था? हाँ। आगे जनाब, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ। ये फोक रंग, हाँ। ये जनाब इसकी स्टोरियां लगी हुई हैं जी, पिछलियां कुछ इन्होंने उड़ाई थी जब मैंने शुरू में। हाँ। 424, हाँ। 424 स्टोरी है जी। हाँ। 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। हाँ। और एक अताउल्ला की स्टोरी जो है वो 94 लाख है। जी हाँ। हजारों में नहीं, लाखों में है। नीचे गुलबहार बानो की है। हाँ। ये 4 साल पहले लगी है। हाँ। अताउल्ला वाली स्टोरी 5 साल पहले लगी है। हाँ। गुलबहार बानो वाली 4 साल पहले लगी है। ये 50 लाख है। नाजरीन ये मेरे पाक वतन का डेटा है। जी हाँ। मैं ये डेटा मैं मर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं पूछूंगा कि कहां गया डेटा ये और कौन चला रहा है। आगे आते हैं। अच्छा, ये चैनल बना था जनाब, ये 19 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2014 में बना है। और ये तकरीबन 8 करोड़ इसको देख बैठे हैं लोग। हाँ जी। 8 करोड़, ये देख लें जनाब। और ये डाटा चोरी का डाटा चल रहा है इसमें। सब सर मैं पूछूंगा ना, जी, जी। सुने। आगे जनाब ये आपने दिखा दिया। ये दिखा दी थी। हाँ, आगे मैं इनके लक्षण दिखाता हूँ। हाँ हाँ, वाह वाह। ये मैं एक मिनट हाँ, हाँ, एक जी, मिनट जी। मैं बात कर, जी, जी, मैं करें। कुछ बात बताता हूँ। नाजरीन, लोक विरसा ऐसा नहीं है कि ये सारा डाटा जो है ये प्राइवेट दूसरे चैनल्स पे ही चल रहा है। हाँ हाँ, लोक विरसा ने पैसे लिए, पैसे लेके हाँ। मैं स्टोरी दे रहा हूँ, जी जी, पैसे लिए इस नाम पे कि हम डिजिटाइजेशन करेंगे, हम डाटे को चलाएंगे और इंटरनेट के ऊपर जो है वो विजिबिलिटी बनाएंगे। उस पैसे के तहत ये एक चैनल बनाया गया लोक विरसा। ये रहा, हाँ, ये लोग वैसा कहा ये लोक विरसा का एक चैनल बना जी। और इसके ऊपर हाँ 6,085 यानी 6,850 सब्सक्राइबर्स हैं। जी जी। वीडियो एक है। और कितने पहले लगी? 8 साल और पहले। 8 साल पहले। और जाती थी ना, मतलब मिल्कियत अवाम की मिल्कियत थी ना। इस पे नहीं लगी जोर स्टोरी, इस पे स्टोरी भी नहीं लगी। हाँ। और सिर्फ ये देख लें 160 व्यूज हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। किसी ने लाइक भी नहीं किया, किसी ने इस पे कमेंट्स भी नहीं किया। क्यों करता कोई? भी नहीं किया, लेकिन 7,500 सब्सक्राइबर इसके हो गए सिर्फ इस वजह से कि लोगों को पता है कि ये लोक विरसा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये हुए कैसे हैं? हाँ, अब ये भी ये मैंने सुना है कि ये इन्होंने 2023 में रीलॉन्च किया है।
अच्छा, उसके फिर पैसे भी दोबारा भी लिए होंगे। वो मैंने लिख के भेज दिया मिनिस्ट्री को। हाँ। ये फिर कल तफसीली करेंगे। ठीक है। ये जो है इन्होंने कोई उस वक्त मुझे किसी ने बताया था, फिक्स फिगर मुझे नहीं, मेरे पास लिखे हुए होंगे। सरसों ने हाँ। 65 के 70 लाख री लॉन्च के लिए लिया था, और इन्होंने बड़े बड़े बैग बना के लोगों को बुलाया था, अपने मुरासब बनाए थे कि जनाब, और ये उन्होंने और उसमें सब्सक्राइब कराया, और उन्होंने कहा बस हमने बैग ले लिए हैं, बाकी हमने क्या करना है। और ये है जी चीज। रही बात, मैं अपने नादरीन को बता दूं कि जनाब इन्होंने कहा जी कि ये निजी चीजें दिखाता है हमारी। अब निजी चीजें क्या थी? जो मैडम जी ने पावर शो शुरू किए थे, जब मैंने कहा था कि फनकार मर रहे हैं, फनकारों को हक नहीं मिल रहा, तो इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि जनाब फनकार आके अजरक पहनाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, ऊपर फूल बाशियां करेंगे, फिर चादरें और चढ़ाएंगे। तो मैंने तो मशहूरी शुरू कर दी थी कि यार मैडम का मतलब मैं दिखा रहा था ना, और मैं दिखाता हूं। तो अब ये कहते हैं जी हमारी निजी है। मैं आपको और बात बता दूं, ये जिस दिन ये जो माह रमजान गुजरा है, मेरे पास वो वीडियो पड़ी है, मैं वो अदालत में दूंगा। ऐसे नहीं, मुझे वो जेब नहीं देती अपनी बीवी के सामने भी बैठ के कि मैं वो वीडियो दिखा दूं। और उसमें क्या था कि इनकी बेटी की 16वीं सालगिरह बताई गई, और उसमें जो हो रहा था, उधर से अफ्तारी का टाइम था, उधर से हजरत अली की यौम शहादत का दिन था, माह रमजान का महीना, वो क्या हो रहा था। और सबसे बड़ी और बात है सर, उसमें तो पता ही कोई नहीं, मैं कर की रही हूं सर। जो स्टूडियो के साउंड प्रूफ गद्दियां होती हैं साइडों पे लगी, वो पांव में डाल के उनके ऊपर नाच रहे हैं। मैडम जी, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं ला मखमसूला खाता हूं, मुझे कोई दुश्मनी थी, लेकिन जो आपने इस इदारे को, फनकारों को तबाह किया, वो मेरा हक है। वो ऐसे नहीं जाएगा आगे। देर है अंधेर नहीं है, मेरे अल्लाह के घर में भी हक है, लेकिन इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। तो आप जो कह रही हैं, और आप झूठी एप्लीकेशनें भी देती हैं, मैं फिर नाजरीन को बता दूं, अल्लाह की करो नवाजी से मैं कभी भी हौसला नहीं हारूंगा। क्यों? कि ये मेरा हक मारा गया। मैं एक आर्टिस्ट, छोटा ही सही, छोटे से बड़े बनते हैं, और जो गरीब आदमी दिन को तगारियां उठा के अपनी रेसले करके इधर आते हैं, उनको हक ही नहीं मिलता, उनको रजिस्टर नहीं किया गया, उनसे वैसे ही काम खोते की तरह लिया गया, दिन रात नचान चाके। मतलब सुबह 10 बजे आना, रात 10 बजे तक उन्होंने पैरों ते छाले पै गए नच नच के। यार फनकार, एक दफा एक बंदे नू अग लग गई सी, मुंह विच अग लग गई। वो करते हैं ना, करते हैं फायर ब्लो करते हैं। उसने वो पे मिट्टी का तेल डाल के, वो मैंने ऊपर कपड़ा डलवा के, उधर लोग भाग गए। ये मेरे, और मैंने जब वो लगाया था, ये 23 वाले मेले की बात है, तो मैंने कहा कोई कपड़ा दो, कपड़ा फेंका है उसके, वो फड़क रहा था। फनकारों के साथ तो ये कुछ होता है? मैडम जी का क्या है प्रोटोकॉल, बच्चों जी आई जी मैडम जी, आई जी मैडम जी, लेकिन ये काम तो नहीं चलेगा। और आप जितनी मर्जी स्ट्राइक लगा लें, खुदा की कसम खा के कहता हूं, फनकारों के लिए एक चैनल नहीं, 100 चैनल भी फनकारों की जूती पे मारता हूं। समझे ना बात? नाज़रीन, आपने मलिक मोहम्मद नवाज शौकी के जज्बात को सुना। जज्बात जाहिर है, जो मुखलिस आदमी होता है, जो सच्चा आदमी होता है, उसके जज्बात होते हैं, और जो जज्बात में मौजूद गुफ्तगू होती है वो सच्ची होती है। इदारों को दरख्वास्तें दी जा चुकी हुई हैं, मुताद्दिद दरख्वास्तें जो हैं वो इंक्वायरियाँ जो हैं वो पेंडिंग हैं, उनके ऊपर काम जारी है। उम्मीद यही है कि जो दूध का दूध है, पानी का पानी किया जाए। इसमें जहाँ जहाँ जितनी जिस तरीके से लोक विरसा को लूटा गया, तबाह किया गया, ख़राब किया गया, इदारे का बेड़ा गर्क किया गया, उसको स्टिल किया जा रहा है, फ़नकारों को तबाह किया गया, फ़नकारों के साथ जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी हुई, इस तमाम के ऊपर जो है वो एक्शन होगा, इस तमाम के ऊपर कार्रवाई होगी, और जो इस जुल्म का हिस्सेदार है उस सब को जवाब दे होना पड़ेगा। कोशिश जारी है। शौकी टीवी को देखते रहिए। मलिक मोहम्मद नवाज शौकी को इजाज़त दीजिए, मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, और देखते रहिए शौकी टीवी। अस्सलाम वालेकुम।